isomerism today. Isomerism means iso means same. Isomers means same molecular formula but different structural formula. So organic compounds having same molecular formula but different structural formula are called isomers. Are called what? Isomers. Now we'll do isomers category wise. Today we'll start isomers. Write down first of alkanes. Alkanes. And in alkanes, we will just see chain isomers. Now, why do we call them chain isomers? Discuss karte hain jaldi se. Then I'll explain you what are chain isomers. Write down. First, we have butane beta. In butane, we get two isomers. First is N-butane, the normal butane. N stands for normal, जो आपने butane पढ़ा है. Butane means how many carbon? Four. So 1, 2, 3. A means single bond. And then fill in the blanks with carbon. Every carbon should have three hydrogens. No, every carbon should have four valency completed. So the center one already has two more again. This one also has two, so two more hydrogen. This one has one, so three more hydrogen. So you can even write down the condensed structural formula, but I'm writing the molecular formula. C4H10. Now second is isobutane. Now in class 10, please don't worry about whether butane will be starting with capital letter, capital B or small b. It's not there in the syllabus. Okay, very simple working. Sometimes you may find this type of explanation. Sometimes teachers also do, but it's not required better in class 10. Okay, simple naming. In CBSE, they don't even do organic chemistry in class 10, but you are touching it. जितना भी आप थोड़ा बहुत कर रहे हैं भी बहुत ज्यादा है, इसको एक्स्ट्रा नहीं करेंगे. Once you are done with organic chemistry totally 100%, then we can add concepts of class 11 and 12. But right now, let's learn the basics. Isobutane का मतलब है ब्यूटेन का आइसोमर. सुनेगा ध्यान से. Carbon, carbon, carbon. I can put the fourth carbon here. So I have changed the chain. First I had all carbons in the same chain. अब मैंने उसको ब्रांच निकाल लिया. तभी इसका नाम है कौन सा आइसोमर? Chain isomer. The first carbon has one bond complete, so it will have 3H. Second carbon has three bonds complete, so 1H. Third carbon has one bond complete, so CH3. This carbon has one bond complete, so CH3. Now, how will we name it? Although we will be doing it tomorrow, but I am teaching you. When we name these compounds, we use the longest chain rule. Now, this rule says that the carbon coming in the longest carbon chain will be considered as one. This is one chain. And this one is extra. This will be called as the substituent group. मेहमान है ये. घर वाले लोग तो आपने सेलेक्ट कर लिए, जो ऊपर वाली पूरी चेन है, तो आप बोलेंगे सर उसी चेन को क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि वो लॉन्गेस्ट चेन है. हाँ, हालांकि आप नीचे भी बेंड कर सकते हो, चेन को भी देखेंगे हम, बट दिस इज सेम. तो घर में भी अगर आपके मेहमान आते हैं तो पहले मेहमान को खाना खिलाते हैं, खुद खा लेते हैं. माइल्स बताया था ना, पहले मेहमान को खिलाते हैं. ऐसे तो नहीं पहले आप खाना खा रहे हैं, मेहमान को उठ रहे, रुक जाइए देख लीजिए क्या क्या है बना हुआ. जब आपने खाना खा लिया, लास्ट में हाथ हाथ करके बोला अब आप जाओ खाना खाने. ऐसे तो नहीं करते. मेहमानों को पहले खिलाते हैं. और सुनिएगा ध्यान से, छोटे बच्चे होते हैं जिनसे सब्र नहीं होता, उन्हें खिला देते हैं मेहमानों के साथ, है ना आयुष्मान? आपको खिलाते हैं. देखिए यहाँ पर, तो ये जो सर्कल वाला ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है. कौन सा ग्रुप है? सब्स्टिट्यूएंट मतलब मेहमान. इसका नाम पहले लिखा जाएगा. CH3 क्या होता है बताइए? मिथाइल. मीथेन नहीं है. मीथेन होता तो CH4 होता, डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन. ये मिथाइल है, दो ही लर्न करना है. CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल.
मिथाइल है। अब इस मिथाइल की पोजीशन 1 2 3, ठीक है, 2 पे आ रही है यहाँ से 1 2 3, उधर से काउंटिंग में भी 2 पे आ रही है। इसका नाम हुआ बेटा 2 मिथाइल, और मेन कार्बन कितने थे? 3 प्रोपेन। नाम ले लो आपको इसका, पर इसका कॉमन नेम मैंने आपको बताया कौन सा? आइसोब्यूटेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखिएगा, C4H10। तो देखिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट है। कंडेंसी लिखा है, जो मैंने सामने फॉर्मूला लिखा है कंडेंसी। अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन को ऐसे निकाल दीजिए इसके लिए, इसके भी ऐसे कीजिए, ठीक है। लेट्स डू द अदर सेट। Done. Copy. Then I'll teach you one more. Some of you may say, sir, you have put CH3 at the center. ये जो substituent group है हमारा मिथाइल, ये आपने बीच में लगाया है, क्या आप एक कोने में नहीं लगा सकते थे शुरुआत वाले कार्बन पे या आखिरी वाले कार्बन पे? तो अगर हम उसको फर्स्ट कार्बन पे लगा दें, मान लीजिए ऐसा लिख दें CCC, देखिएगा इधर लगाना चाहते हैं ना C को, इस कार्बन के H3, इसके H2, समझ पा रहे कैसे आ रहे हैं? इस कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट है तो H2, इस कार्बन देखिए बेटा, तो व्हाट डिड आई से, देखिए कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है ना। तो इसमें हम, आप बोल रहे हैं सर इसको बोलिए 1 2 3 और 1 पे मिथाइल लगा दीजिए, क्योंकि गलत है। अरे भाई कार्बन की चेन अगर आप देख लें तो ये पूरी एक ही चेन है, ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। आखिरी वाले कार्बन को नीचे तोड़े। अब मान लीजिए अगर आप ऐसा करें कि सर इसको, इस कार्बन को मैं यहाँ से हटाकर अगर मैं इधर बना दूं CH3, तो क्या ये अलग कंपाउंड है? नहीं, ये तो वही है, सेम है ये। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया बस। नहीं, वन मिथाइल हो सकता। अगर आप इस चेन, ये सिंगल चेन पता चल रहा है ना आपको, सिंगल चेन है, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इस कार्बन को अगर आप काउंट करें 1 2 3 4, एक ही तो लाइन बोलेंगे आप इसे, अलग अलग लाइन पे बोलेंगे। यहाँ पे अलग लाइन हो जाती, ऐसे नहीं कर सकते हम 1 2 3, यहाँ से 4 नहीं जाते, इनके बीच में तो बॉन्ड ही नहीं है, समझ गए? तो जो ऊपर वाला कंपाउंड है बेटा वो वही है। लास्ट में भी अगर आप सी एच, मान लीजिए ऐसे लगाया CH3 CH2 CH2 और नीचे कर दिया CH3, अरे ये भी सेम ही है, ये भी सर एक ही इसका चेन नाम है। भी आइसोब्यूटेन ही होगा। हाँ ये भी आइसो एन ब्यूटेन होगा बेटा, ये सब एन ब्यूटेन है। आइसो कैसे है? आइसो में तो सेकंड पोजीशन पे आता है, किसमें आता है? सेकंड पोजीशन पे। ओके सर।
चलिए लेट्स सी हियर डन। क्लियर हुआ है आपको ये क्यों है इन दोनों की तरह सेम? नहीं हुआ है तो आगे दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट आइसोमर लिख लेंगे, वो और बढ़िया है, आपको हर चीज समझ में आएगा। देखिएगा, ये तो हुए हमारे ब्यूटेन के कौन कौन से, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पेंटेन के 3 होते हैं पीछे। पहला होता है नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। दूसरा होता है आइसो पेंटेन और तीसरा होता है नियो पेंटेन। ठीक है, नियो से आगे भी बनेगा तो बता देंगे नाम क्या है। चलिए देखते हैं, पेंटेन पहला आता है एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल पेंटेन। पेंटेन मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन। फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए। इसका एक बॉन्ड है तो H3, H2, 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 CH3 याद है। So how many carbons? Carbon 5, hydrogen how many? 12। डबल से 2 ज्यादा, ये तो हमें पता ही है। अब आता है बेटा आइसोपेंटेन। सुनेगा ध्यान से। अगर मैं, आपको ये तो पहले से ही पता है कि भाई हम जो कार्बन को उठाकर इधर डालेंगे, यहाँ पे अगर मैंने कार्बन डाला तो वही बन जाएगा, कंपाउंड तो वही होगा। समझ पा रहे हैं आप? 5 की चेन बनेगी ऊपर वाले की जैसे। अगर मैंने लास्ट में डाला इस कार्बन को, अरे तभी वो ऊपर वाले ही बन जाएगा, 5 की चेन तो नीचे ही आ जाएगा। अरे इसको उठा के नीचे कर दिया बस, और क्या किया। ठीक है, कोई एंगल वैंगल का गेम कोई है? ऐसा नहीं है कि नीचे रख देंगे तो अलग कंपाउंड हो जाएगा, नहीं। ये ऐसा है कि एक धागा है, अब धागे को आप सीधा रखिए चाहे ऐसे मोड़ दीजिए यूं, बात वो रहेगा तो वो सेम ही। स्ट्रक्चर बदलेगा तब जब आप धागे को यहाँ से तोड़ के यहाँ ज्वाइन करो, तब धागा बदल जाएगा, स्ट्रेंथ तभी तो बदलेगा। तो वो यहाँ पर है बेटा। तो 5 कार्बन में से देखिए, मैं पहले वाले पे कार्बन नहीं डाल सकता, लास्ट पे नहीं डाल सकता, तो बचे दोनों में से कहीं एक डालूंगा। अब अगर मैं आपको बोलूं चाहे इस पे डालें चाहे दूसरे पे डालें, बात एक ही है। पता है क्यों? देखिए CH2 CH3, क्योंकि ये मेहमान हो जाएगा ना, ये तो हमारा मेन चेन हो गई। कौन सा रूल है ये, लॉन्गेस्ट चेन रूल। मतलब जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को नाम देते हैं तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन मान लेते हैं। उसके अलावा जो भी कंपाउंड इसमें आ रहा है वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मेहमान है वो। और मेहमान का नाम पहले लिखते हैं और मेहमान को नंबर भी देते हैं। नेमिंग तो आज ही कर रहे हैं। तो अब बोले सर कल क्या करेंगे, कल हम देखेंगे अगर 2 मेहमान एक साथ आ गए तो फिर किसको खिलाएं पहले। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जैसे अगर ये जो H3C के नीचे से हम CH3 लग देंगे तो वो पूरी चेन एक ही होगी हाँ गड्डी। वो सेम कंपाउंड होगा बेटा। अगर आपने यहाँ डाल दिया CH3, ये तो 5 की चेन बन जाएगी फिर से, वो यही बन जाएगा। ओके सर। मिसाली कैसे बनेगा वो, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वो ऐसे बनेगा कि भाई आपने इसको उठाकर, ये देखिए, आपने इसको उठाकर यू लगा दिया, ऐसा हो जाएगा उसका मतलब। बात तो वही है, उसे नीचे लिखे थे देखिए, इसको यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, लॉजिक नहीं आ रहा है आजकल ना। यस स्ट्रेस सर। सेंसिटिव है बेटा, एक कार पढ़ रहा हूँ के चक्कर में। इसकी तरह पढ़ाई मत करिएगा। मिताली क्लियर है बेटा? एनिमेशन जो मैंने बनाया आपके लिए छोटा सा यस सर। सिंपल एनिमेशन, सर अगर हम लोग सबसे राइट वाले को से नीचे करते हैं, वही तो बात एक ही है। वो सबसे राइट वाले को PHP के साथ, ये वाले इस वाले में, हाँ। अरे बात एक ही है बेटा, अगर आपने इस CH3 को भी इसके नीचे कर दिया, एक वो उस वाले में, वो ग्रीन में, ये येलो वाला, हाँ इसके नीचे इस, इसके नीचे कर दिया तो अलग कंपाउंड बन जाएगा। चलिए करके देखते हैं। बाबू ने बुलाया कि सर अगर ये कार्बन यहाँ से हटा के मैं यहाँ कर दूं इस कार्बन को तो बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। पहले कार्बन का CH, इसका CH, इसका CH3 होगा, इसका CH2, इसका होगा CH3। अब जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो एक कार्बन चेन को क्या लेना पड़ेगा, मेन चेन। हो सकता है आप इसको मेन चेन मान लें। अच्छा सुनिए, अगर आप ऊपर वाली मेन चेन माने तो कितने कार्बन होंगे, 3। बट लॉन्गेस्ट चेन रूल कहता है लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। इसको अगर मेन चेन मान ले तो कितने होंगे, 4।
और अगर ये ग्रीन वाली को मेन चेन मान ले तो भी क्या होंगे 4। तो आप किसी भी एक को मान सकते हैं। बताइए ग्रीन माननी है येलो माननी है? ब्लू, ब्लू वाली। तो लीजिए ब्लू वाली चेन मेन चेन हो गई, और जो बाकी है दूसरा है ये क्या हो गया इसका सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम होगा 1 2 3 4, और इधर से 1 2 3 4। तो यहाँ से तो दूर आ रहा है, यहाँ हमारी नंबरिंग से पास आया था। 2 पे मिथाइल विथ एक प्रॉप ब्यूटेन, 2 पे मिथाइल ब्यूटेन, 2 पे मिथाइल ब्यूटेन। आज हमारा फोकस नेमिंग पे नहीं है, आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बता रहे हैं, नहीं तो नेमिंग पे नहीं है। चलिए आइसो पे वापस आते हैं। आइसो पेंटेन में हमने क्या किया, कार्बन 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 में से एक कार्बन यहाँ फिक्स कर दिया। पहले कार्बन का 1 बॉन्ड कंप्लीट है तो H3, इसके 3 कंप्लीट है तो H, इसके 2 है तो 2 और, इसका 1 है तो CH3, इसका 1 है तो CS। इसकी नेमिंग करेंगे अगर, कॉमन नेम इसका क्या है बताइए, आइसोपेंटेन। बट अगर इसकी नेमिंग करें तो क्या होगा, 1 2 1 3 4, ये सही माना जाएगा। अगर काउंटिंग यहाँ से करूँ तो ये गलत हो जाएगी बेटा, कि इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है इसका नंबर। तो क्या बोलेंगे इसे हम, 2 पे 2 मिथाइल पेंट ब्यूटेन, और फॉर्मूला होगा C5H12 भी इसका भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको बनाइए साथ साथ, टॉपिक को ऐसे ही करिए। अगला आता है नियोपेंटेन। यस मॉलिक, बोलो बेटा। हाँ ये चेक कराया आपने, इसको कंडेंस्ड वे में बनाना बिल्कुल ठीक। इसमें यहाँ पे कार्बन बड़ा है, ये गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपने कार्बन एक साथ ना 1 2 5 6 पेंटेन है 5 रुपए का। चलो बेटा नियो पेंटेन में देखिए क्या करेंगे हम, कार्बन 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 5 कार्बन है, एक कार्बन इसके ऊपर और एक कार्बन इसके ऊपर। बताइए क्लियर हुआ है? ये हो जाएगा H3, इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट है, CH3 CH3 CH। तो इसका केमिकल फॉर्मूला भी ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होगा। बट अगर इसकी नेमिंग करें तो लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाइए, ये होगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। पक्का? ये हो जाएगा 1 2 3, तो 2 इधर से भी 1 2 2 पे ही आ रहा है। पर कितने मेहमान हो गए इस बार? हाँ, और मेहमान का नाम क्या है, मिथाइल। 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, बट उनकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी आपको। 2 2 डैश डाई मिथाइल। बेटा